नहीं पता सर। एलपीजी यूज होता है घर में, किचन में? प्रबल? That contain two things. One is the propane, other the butane, isobutane. The two compounds are there as a fuel. And the other compound is also there, that is known as the methyl mercaptan. This methyl mercaptan is CH3SH. इसके कारण स्मेल आता है। ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है, लेस देन 1% इवन। अगर गैस लीकेज होगा तो स्मेल हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज द फ्यूल इज दिस ethyl and isobutane, right? Liquefied petroleum gas. This is again a hydrocarbon. CNG, compressed natural gas. It's all mixture of hydrocarbons. LNG, liquefied natural gas, right? Liquefied natural gas. So these all are basically hydrocarbons. Am I clear? Liquefied natural gas, CNG, LPG, all these are hydrocarbons. These are used for making the polymers like PVC, polypropylene, polystyrene. These all are hydrocarbons. Read on. They're all used for making the polymers. Used for manufacturing of dyes and drugs. Hydrocarbons have vital role in our daily life. We are using it in the fuel, using it as a polymer, using it to manufacture dyes and drugs. Okay? Any doubt till now? नो सर। Now next slide on classification of hydrocarbons. मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. There are four categories are there: alkane, alkene, alkyne, and arene. That depending upon how many bonds are there between the carbon and other carbon atoms. Between two carbon atoms, how many bonds are there? Single, double, triple, or like 1.5 bond type that is in resonance in the benzene. So depending upon the number of the bonds between two carbon atoms, we have classified them into saturated, unsaturated, and aromatic. When I say saturated, it means the carbon atom is making bonds equal to its valency. The carbon has a valency of 4. It is a 4 electron outermost shell. And now if it is making 4 bonds with the other atoms, that may be hydrogen, that may be carbon, that may be, right, anything. So hydrocarbon here. This type of compound is called as a saturated. If the carbon makes bonds equal to
its valency with other atoms. With other atoms. It means if I say carbon has a valency of 4, then you can see there are 4 atoms are there, out of which I can see 3 hydrogen and 1 carbon. It can be 4 hydrogen, but it is making 4 bonds. That is saturated. In case of unsaturated, carbon makes 1 double bond, or it can make 1 triple bond. It means the carbon is not making 4 bonds with the 4 other atoms. It is making bond with the 3 atoms, even though valency is equal to 4. So 1, 2 and 3. So it is making bonds with the 3 other atoms. It is an unsaturated hydrocarbon. Aromatic are those compounds which contain benzene or their derivatives, where we can see that there is a resonance. The bond is neither single bond nor double bond. That you know, it is a concept of the resonance. Such type of compound are known as an aromatic compounds, aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons, right? Any doubt till now? Any doubt till now? No, sir. सरप्रीत आपकी वॉइस क्लियर नहीं है. आई थिंक यू शुड यूज सम माइक. बहुत धीमी सी आवाज आती है आपकी, बहुत धीरे. सैचुरेटेड में भी कार्बन है, अनसैचुरेटेड में तो आता है कार्बन सैचुरेटेड. मतलब हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, राइट? Carbon hydrogen, but in saturated there is a single bond between carbon carbon. In case of unsaturated there may be double bond or it can be triple bond, but these are carbon compounds. Okay, so they contain single bond, alkane, cycloalkane, double bond or triple bond between two adjacent atoms. ये हम नोट करने की जरूरत नहीं, you know what is this now, right? Now what are cycloalkanes? ये भी आपको मालूम है, right? In the nomenclature we had done. For example, if I say I have a cyclopropane or I have a cyclobutane, or I have a cyclopentane, so which contain single bond between carbon carbon but in a closed ring, they are known as a cycloalkane. Cyclopropane, cyclobutane, cyclohexane, or it can be cyclohexane. Depending upon number of carbon atoms, we are naming it as a cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane, and so on. They contain single bond between two carbon atoms. Getting me? Yes. Clear? Okay, now work upon this.
So D option. D. Work upon this. A A option. Option A. Okay. So that was just introduction. Let us go into detail of the first classification, that is alkane. So alkanes are inert under normal conditions. That is why they are known as the paraffins. Paraffins means little affinity. Para means little affinity, less attraction. It means they are inert, they are not reactive, or they need large amount of activation energy for the reaction to take place. कोई भी reaction करना हो, we need some temperature, high temperature. We need some pressure. Otherwise ये अपने आप react नहीं करते. They are saturated. They are inert under normal conditions. So we call them as an paraffins. They contain carbon single bond carbon, right? Carbon single bond carbon. Methane, ethane. You can say methane CH4. Single bond, not double bond. It can be ethane C2H6. Single bond with the carbon, that is the alkane. It can be any long chain, propane, butane, pentane, hexane. कोई भी long chain हो सकती है. It can be branched also. For example, if I say 1, 2, 3 and then branching. Am I clear? So methane, the first member. First member. This is also known as a marsh gas. Why marsh gas? Marsh में दलदल, right? किसी मार्शी एरियाज में वी गेट दिस मार्श गैस. देखो कहीं से अगर आप जंगल से निकल रहे हो और वहां पर दलदल हो, पानी भरा हुआ हो, तो वहां पर प्लांट्स एंड एनिमल्स का डिकम्पोजिशन हो रहा होता है. द बैड स्मेल दैट वी ऑब्जर्व इज अ मीथेन गैस, राइट? बैड स्मेल by the decomposition of organic matter, maybe plant or animal, whatever. ऑब्जर्व किया कभी आपने? yes or no? सारे सो रहे हैं, क्या बात है? Yes, sir. right. So general molecular formula of alkane is CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. If you put here n is equal to 1, you will get CH4. If you put here n is equal to 2, you will get a C2H6. If you put here n is equal to 3, you'll get a C3H8. Put here n is equal to 4, you'll get a C4H10. Put here n is equal to 5, it is a C5H12. सर अब वॉइस सही आ रही है?
हाँ बच्चे, सरप्रीत मैं सुन पा रहा हूँ आपको। पहले ठीक नहीं थी। सो पुट हियर एज n की वैल्यू है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, so I'll get a methane, ethane, propane, butane, pentane. Depending upon number of the carbon atom, I can create the formula of the hydrocarbon. Am I clear? If I say n is equal to 8, create the formula of the hydrocarbon, alkane. If I am giving you n is equal to 4, n is equal to 8, what is the molecular formula of the alkane? अगर n की वैल्यू 8 है तो आप एल्केन का जर्नल फॉर्मूला क्रिएट करिए। एल्केन का फॉर्मूला क्रिएट करो। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। प्रबल, C8H18. ठीक, C8H18। नाउ अब यहां पर क्या हो रहा है? इफ यू सी दिस ethane CH3 and then you say propane, it is a CH3 CH2 CH3. Then you say butane C3 CH3 CH2 CH2 CH3. Pentane 5 carbon chain. क्या ऑब्जर्व हो रहा है? With every increase in number of carbon atom, I am getting here CH2 in between, one extra CH2. All these are alkanes. It means all these have same functional group, but differ by what? They are differing by one CH2 group, and the molecular mass will increase by 14. Such type of systems, hydrocarbon systems, are known as a homologous series. Same molecular formula, but they are differing by CH2. Every time I am introducing one more CH2 and molecular mass increase by 14, that is called as a homologous series. So the series of compound represented by journal formula, and the difference between any two successive compound by the CH2 formula, and the molecular weight by 14. That is called as a homologous series. Homologous series. क्या होती है homologous series? समझ में आ गया सबको? Yes. लिख लो homologous series of compound which can be represented by a journal formula, differ by CH2 and molecular mass 14. That is called as a homologous series. Done.
In case of alkane, if I talk about alkane structure, let it be methane. What is the hybridization of carbon in this compound? What is hybridization? जब स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो शेप एंड ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं, राइट? इट मींस वी मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ shape and geometry. Shape and geometry means chemical bonding, then we have to understand. Can you tell me what is the hybridization of this methane carbon here in this compound? Sanvi? बताइए, थोड़ी आवाज क्लियर करिए तब बताइए, आवाज फिर से दबी हुई है आपकी. sp इट इज sp3. जब भी सिंगल बॉन्ड बनता है तो इट इज एन sp3. 4 बॉन्ड्स. sp3 हाइब्रिडेशन होने पर ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री प्रबल. Sir, trigonal pyramid. ठीक है, वेरी गुड. टेट्राहेड्रल. और टेट्राहेड्रल होने पर जो बॉन्ड एंगल बनता है दैट इज 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स. आपका केमिकल बॉन्डिंग बहुत वीक हो गया. टर्म 1 का सिलेबस कमांड में होना चाहिए, नहीं तो आप यूं ही बस टाइम पास कर रहे हैं +2 टर्म 2 का. एंड +2 में आकर के 90% सिलेबस एक्सटेंडेड वर्जन है +1 का, यानी कि +1 आती है तो +2 समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते. केमिस्ट्री का सिलेबस बात करूंगा, 90% सिलेबस एक्सटेंडेड वर्जन है और 10% बिल्कुल नया है जो पहले आपने कभी पढ़ा ही नहीं है. इसका कोई लिंक +1 में है ही नहीं, नया है टॉपिक. तो 90% है एक्सटेंडेड और 10% है टोटली न्यू. तो आपको +1 टोटली आनी चाहिए, चाहे टर्म 1 का सिलेबस है चाहे टर्म 2 का है. इट मस्ट बी इन कमांड, राइट? तो अब छोटी छोटी बातें नहीं आएंगे तो मुश्किल हो जाएगा. तो टर्म दिस इज टेट्राहेड्रल. एम आई क्लियर? जब भी आप स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्लस के लोअर क्लास में बनाते थे, ऐसा, राइट? ऐसा दिखाते थे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. फिर आप इसे इस तरह से बॉन्ड्स करके हुए दिखा सकते हैं. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए आपको ऐसा दिखाना है. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए आपने ऐसा बनाना है. तो कार्बन एटम इज sp3, राइट? एक कंडेंस्ड फॉर्मूला हम और लिखते हैं मीथेन का, दैट इज CH4. बेसिकली मैं मीथेन को कितने ही वे से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. एक ही कंपाउंड है मीथेन, उसको हमने डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशन लिखा है. एम आई क्लियर? सिमिलरली कंपाउंड हमारे पास में इथेन, ETHANE, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6. ये कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, इसे आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. ये सुनो, इसे आप बॉन्ड शो कर सकते हैं, इसे आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी एनालाइज कर सकते हैं.
3-dimensional structure, एक को beyond the different ways are there how we represent the molecule. Understood? Yes or no? Understood here till now? Prabal? Done? Yeah. Sure. Tetrahedral carbon, right? Every carbon atom, this carbon atom is bonded to the 4 other carbon atom at an angle of 109 degree 28 minutes. ऐसा आपने कोई chemical bonding में किया है. So अभी बात लिखना नहीं है, जो मैं आपको दिखाना हूँ जस्ट लिखना नहीं है इसको, ये आपको चीज जानते हैं, बहुत छोटे बच्चों क्लास वाले बताने वाला मैं आपको. दिस इज इथेन, दिस इज प्रोपेन. कंडेंस्ड फॉर्मूला इज दिस, यू नो दिस, कुछ नया नहीं है इसमें, यू नो कंडेंस्ड फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, दोनों को क्लब कर दीजिए. दोनों का बॉन्ड डैश फॉर्मूला ऐसा दिखा सकते हैं, बॉन्ड डैश फॉर्मूला. यस, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऐसा दिखा सकते हैं. गॉट इट? यू नो दिस, ये छोटा बहुत 10th क्लास वाला आपने पढ़ा हुआ है. बॉन्ड लाइन नोटेशन आप ऐसा दिखाता है, ये आपने कभी नोमेनक्लेचर में किया था. हम मॉलिक्यूल को बॉन्ड लाइन में भी शो कर सकते हैं. एवरी बेंड हियर शो द कार्बन एटम. इट्स द 1 2 कार्बन एटम, तो इट इज इथेन. इट्स a 1 2 3. So this is one carbon atom here, second carbon atom and third carbon atom. They're bent like this, or it is a bond line notation. ये चीजें आपको आती हैं, no need to note down. Now these hydrocarbon are of either two types now, straight chain and a branch chain. Straight chain, for example, if I say I have a butane, example take up सकता हूँ. यहाँ पर straight chain है. It is C4H10. Molecular formula C4H10. 1 2 3 एक को मैं ब्रांचिंग में लेकर के आता हूँ. The molecular formula is again same. I can say these are the chain isomers of each other. Chain isomers of each other. The first compound is the straight chain and second is the branched chain. You can see the methyl has come in the branching. 2-methyl propane. This is a branched chain alkane. This is a branched chain alkanes. Straight chain and branched chain. Got it now? Prabal, Yes, sir. answer this question. Sir, C part. ठीक.
Jashan, answer this question. ठीक है Sarpreet. It is a branch chain. This compound is Sanvi. So unsaturated. Now next I done classification of carbon atoms in alkanes. Classification of carbon atoms in alkanes. कार्बन एटम की क्लासिफिकेशन करने वाला मैं अब कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं अंडरस्टैंड दैट ये मॉलिक्यूल है इथेन का ये कार्बन एटम जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है डायरेक्टली आई एम यूजिंग अ वर्ड डायरेक्टली कितने और कार्बन एटम से बॉन्डेड है 1 तो इस कार्बन एटम को हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन प्राइमरी कार्बन तीन लोग नहीं है छुट्टी मांगी थी 3 लोग नहीं है छुट्टी मांगी थी जनों से पैराफिन हिटलर Yes, Sarpreet. Yes, sir. Cycloalkane. Yes, Sarpreet. Jashan, can you hear me? Yes. Okay. Now, जिस कार्बन एटम के साथ में ये जो सेंट्रल वाला कार्बन एटम है इस मॉलिक्यूल में दिखा रहा हूं ये वाला डायरेक्टली ये 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है तो दिस कार्बन एटम इज सेकेंडरी कार्बन और ये कार्बन एटम डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है तो दिस इज ए 3 डिग्री कार्बन टर्शरी कार्बन और जिस कार्बन एटम के साथ में 4 कार्बन एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड हैं दिस इज ए क्वाटरनरी कार्बन
दिस इज ए क्वाटर्नरी कार्बन. Am I clear? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? और जो हाइड्रोजन, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हाइड्रोजन्स जो कि प्राइमरी कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड हैं, दे आर कॉल्ड एज ए प्राइमरी हाइड्रोजन. जो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन के साथ बॉन्डेड है, दे आर कॉल्ड एज ए सेकेंडरी हाइड्रोजन. जो हाइड्रोजन टर्शरी कार्बन से बॉन्डेड है, दिस इज कॉल्ड एज ए टर्शरी हाइड्रोजन. क्वाटनरी के साथ में हाइड्रोजन हो नहीं सकता बिकॉज ऑलरेडी 4 bonds आर देयर. So we don't have any quaternary hydrogen, not possible at all. We can have primary hydrogen, we can have secondary hydrogen, we can have tertiary hydrogen. These are possible, but quaternary hydrogens are not possible. Am I clear? प्राइमरी कार्बन अब नोट नहीं करना, मैं आपके ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. जस्ट शोइंग इट. 4 types of carbon: primary, secondary, tertiary, quaternary. Primary carbon attached to only one carbon. Carbon attached to 2 carbon atoms. You know it, right? You know it. टर्शरी जिसमें 3 के साथ बॉन्डेड होंगे और क्वाटनरी जिसमें 4 के साथ बॉन्डेड होंगे. नो नीड टू राइट डाउन दिस थिंग्स, आर वेरी सिंपल थिंग्स. अब आपने मुझे बताना है कि ये जो फर्स्ट कार्बन है, ये वाला, ये किस टाइप का कार्बन एटम है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, व्हाट? आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द कार्बन हियर. आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ कार्बन हियर. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. ठीक है सरप्रीत, प्राइमरी. जशन नहीं आता है आपको? सानवी सेकंड. दिस वन. ये सरप्रीत. degree. Good, 3 degree. Next. Next. Secondary. Secondary. Now this one. It's a quaternary, right? Now this one. Jishan. 2 degree. मैं अपने माइक ठीक रखा करो. This one last. 1 degree. 1 degree. ठीक. What about this one? Sir, primary. ठीक. Now this one. Primary. Good. Now what about this? Primary. Primary. ओके, आइडेंटिफिकेशन समझ में आता है. और उनके साथ जो लगे हुए हाइड्रोजन हैं,
वो कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन कहेंगे। मीन्स हम इन 3 हाइड्रोजन कहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, इन 2 हाइड्रोजन कहेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन कहेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन, राइट। ओके, नाउ वर्क अपॉन दिस क्वेश्चन नाउ। Which of the following contain 1 degree and 2 degree carbons only? यानी 3 डिग्री क्वार्टनरी नहीं होना चाहिए कि इसमें सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन एटम है। वर्क अपॉन इट। थर्ड A Third. option. थर्ड ए ऑप्शन में जो 3 डिग्री भी आ रहा है, कैन यू सी दैट? Yes. तो ये नहीं होगा, यहाँ पर प्राइमरी भी है और सेकेंडरी है, फिर से सेकेंडरी है, फिर ये प्राइमरी है। इट कंटेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओनली, नॉट टर्शियरी, नॉट क्वार्टनरी। बहुत सिंपल क्वेश्चन। वन 1। ओके, नोमेनक्लेचर आपको आता है, बहुत डिटेल में हमने किया हुआ है, जस्ट एक क्विक रिवीजन करेंगे अभी नोमेनक्लेचर का। मेथ, मीथेन, गॉट इट? ओनली 1 कार्बन एटम, दैट इज मीथेन। मैं इसके इनके तरीके से नहीं जाऊंगा, टेबल फॉर्म पे मैं ऐसे चलता हूँ। यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। Ethane. इथेन। नाउ नेम दिस कंपाउंड। ब्यूटेन। नाउ नेम दिस कंपाउंड। Methyl propane. 2 मिथाइल प्रोपेन। नाउ नेम दिस कंपाउंड। टू डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 डाइमिथाइल, 2 बार मेंशन। टू 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो मैं अभी इनके ये रूल्स पर नहीं जा रहा हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंपाउंड नाउ। वर्क अपॉन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। टू मिथाइल थ्री इथाइल हेक्सेन रिपीट प्लीज। क्या सर प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। जशन। टू मिथाइल थ्री इथाइल हेक्सेन आप नंबरिंग कहाँ से कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से? ओके, 1 2 3 4 5 6। अब बोलिए। हाँ बोलो बोलो सर, प्लीज दोबारा बोलो। टू मिथाइल हम्म, थ्री इथाइल अच्छा हेक्सेन ठीक है सरप्रीत, एक या तो आप रूल भूले हुए हो या फिर आपको एबीसी नहीं आती। ठीक है, रूल ये है कि अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, राइट? तो इट इज दैट 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, so it is that 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखना है। मैं क्लियर?
Yes, sir. Work upon this molecule. सर 2,2,3 टेट्रामिथाइल टेट्रामिथाइल, पेंटेन। दोबारा बोलो। 1 2 3 4 5 5 कार्बन चेन। अब बोलो। सर 2,2,4 हम्म, 3 को टेट्रा कहते हैं। 3 को ट्राई कहते हैं। फिर ट्राइमिथाइल हम्म, पेंटेन। गुड। 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। डन everyone? Yes, sir. Now name this compound. टू मिथाइल 2-methyl butane. ठीक। Next topic read on conformation of ethane. Conformation isomer in ethane. Conformations in ethane. Ethane molecular formula बोलिए सरप्रीत। CnH2n+2 इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला, नॉट एल्केन का नहीं, इथेन का इन जनरल फॉर्मूला। C2H2। ठीक है। इस मॉलिक्यूल को हम ऐसा दिखा सकते हैं। तो मेरे को अनम्यूट कर दो, इधर थोड़ी मीटिंग हो रहा है। सभी तरह बोलना ही है, म्यूट मुझे करने की जरूरत नहीं है ना? सभी लोग अनम्यूट ही रहा करो, जैसे मैं रहता हूँ बिल्कुल अनम्यूट। ये देखो, बिल्कुल मैं अनम्यूट रहता हूँ ऑलवेज। हाँ, अपनी सराउंडिंग को म्यूट रखना है। आपके आसपास कोई सो रहा हो, खराटे मार रहा हो, उसको चुप कराना है, ठीक है? तो उनको चुप रखना है। आप अकेले कमरे में बैठिए, आसपास शांति रखिए, आपने बोलना है। अगर आप लोग चुप हो गए तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। जितने चुप आप उतने नंबर कम, गारंटीड। चलिए बताइए, जशन, तानवी, सारे शुरू जाओ। कार्बन एटम की हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पर? सरप्रीत म्यूट क्यों हो गए आप? चलिए हाइब्रिडेशन बताइए। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। सनवी, So sp2. बच्चे अभी बताया था एल्केन में कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है। एल्केन है, जब 4 सिंगल बॉन्ड बनाते हो तो क्या हाइब्रिडेशन होती है?
sp3। ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तो अब हम इस कार्बन एटम को मैं इस तरह से देख रहा हूं, 3D स्ट्रक्चर में देख रहा हूं। जो ये कार्बन एटम है और ये जो दूसरा कार्बन एटम है, ये मैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर देख रहा हूं। देख सकते हो ऐसे, यहां से देख रहे हो आप। फर्स्ट कार्बन एटम आप पहले वाला देख पा रहे हो, उसका ठीक बैक साइड पर एक और हाइड्रोजन है, ऐसा समझ सकते हो? ऐसा ना? Yes, sir. राइट, 3D स्ट्रक्चर इमेजिन करना। जब आप इसे यहां से देखेंगे तो इस कार्बन के जस्ट बैक में एक और कार्बन एटम होगा। यानी जब आप यहां से देखेंगे तो पीछे वाला कार्बन आपको नहीं दिखाई देगा, और ये हाइड्रोजन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको ये वाला हाइड्रोजन नहीं दिखाई देगा। ये एक आगे वाले सारे एटम्स पीछे वाले एटम्स को टोटली एक्लिप्स करेंगे, छुपाएंगे। टोटली एक्लिप्स करेंगे, छुपाएंगे। इट मीन्स आगे वाला हाइड्रोजन पीछे वाले को छुपाएगा, इधर वाला हाइड्रोजन पीछे वाले को छुपाएगा, इधर वाला हाइड्रोजन पीछे वाले को छुपाएगा। इसे कहते हैं एक्लिप्स कन्फर्मेशन। इसे कहते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करते हैं, फ्रंट वाले को सेम रखते हैं और पीछे वाले को हम रोटेट करते हैं अराउंड ए सिंगल बॉन्ड और 60 डिग्री का रोटेशन देते हैं। तो फर्स्ट वाला कार्बन ऐसा ही रहेगा और जो पीछे वाला कार्बन है वो रोटेट हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। आपने यहां पर 60 डिग्रीज का क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कैसा भी कर लीजिए। क्लॉकवाइज रोटेशन, अभी मैं क्लॉकवाइज कर रहा हूं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। अब क्या होगा कि इस हाइड्रोजन के बैक साइड पर यहां पर हाइड्रोजन नहीं होगा, तो आप पीछे वाले हाइड्रोजन को यहां से देख पाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ कन्फर्मेशन, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। Eclipsed conformation and staggered conformation. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ओनली 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है। आई रिपीट, 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड एज conformational isomerism. This is known as conformational isomerism. This is known as a conformational isomerism. Different 3 dimensional arrangement of atoms, ions. Different 3 dimensional arrangement of atoms, a group of atoms. And ये दोनों आपस में ऐसे isomers हैं, we call it conformational isomers, also called as a conformers. Also called as conformers. इस तरह के स्ट्रक्चर को जब हम इस तरह का प्रेजेंटेशन करते हैं मॉलिक्यूल का, दिस इज नोन एज ए सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। This representation of a molecule is called as a Saw-Horse projection formula.
Sawhorse projection formula. Am I clear? These conformers are also known as the rotamers. Conformation isomers or conformers are also known as rotamers because they are obtained by the rotation of the carbon-carbon single bond. The isomers found by the rotation of the carbon-carbon single bond. This is the eclipsed conformer. और अगर हम फ्रंट वाले को कांस्टेंट रखें और बैक वाले को रोटेट कर दें by 60 degree, I'll get another isomer known as a staggered. This is eclipsed. This is a staggered. So rotate by 60 degree. Rotate by 60 degree. Eclipsed to staggered. Eclipsed to staggered. Eclipsed to staggered. This is known as rotamers. These are known as rotamers. Also known as the conformers. यहां पर हमने 60 डिग्री का रोटेशन दिया है. Either you go for clockwise or एंटी क्लॉकवाइज. अगर हम यहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का ऐसा रोटेशन करते हैं कि फ्रंट को ऐसा रखा और 2 डिग्री का जो रोटेशन दिया है वो स्लाइट चेंज किया. स्लाइट चेंज मीन्स कुछ थोड़ा सा ही इसे रोटेट किया है. 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री कोई भी और एंगल जो 60 डिग्री नहीं है, उन सब रोटामर्स को, उन सब कन्फर्मर्स को हम कहते हैं स्क्यू कन्फर्मर. स्क्यू और गोशे, GAUCHE, स्क्यू और गोशे कन्फर्मर. समझ में आ रहा है आपको? ये इमेजिन कर पा रहे हो 3D में? समझ में आया नहीं आया जशन? यस सर. सो अब आप जो 360 डिग्री जो रोटेशन करोगे उसमें हमारे पास में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होंगी. एवरी डिग्री पर एवरी थोड़ा थोड़ा चेंज भी आप कर सकते हो. तो वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स. आपने 3 एज्यूम नहीं करने. इट कैन हैव इनफाइनाइट. 2 एक्सट्रीम मैंने बताए हैं, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड. बाकी बहुत सारे स्क्यू बनेंगे. कितने सारे? इनफाइनाइट नंबर. बिकॉज 360 डिग्री को आप इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. So these are infinite number of conformers. Infinite में यहाँ पर complete rotation है. They can have complete rotation now. Am I clear? यस सर. यहाँ पे complete rotation you can rotate like this. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, आप इसे रोटेट कर सकते हैं और we can have infinite number of conformations. Yes. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir.
यस, अब आपने ये चीज इमेजिन करनी कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पास में, कौन सा स्ट्रक्चर बताओ मेरे को, कौन सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, एक्लिप्स टेस्ट या फिर स्टैगर्ड, कौन सा बनाया है? Staggered. स्टैगर्ड। Staggered. यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर है और यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर। अगर मैं पीछे वाले को दोबारा से इधर लेकर के आऊं, एक्लिप्स बना रहा हूं, तो आपको यहाँ पर दो तरह की हिंड्रेंस फील होंगी। कौन सी दो तरह की हिंड्रेंस? हिंड्रेंस में रुकावट। एक तो मिलेगी स्टीरिक हिंड्रेंस और दूसरा मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आमने सामने आएंगे तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ जाएंगी। और दोनों हाइड्रोजन आमने सामने होंगे तो उनके सरफेस एरिया भी टच करेंगे, तो वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कहते हैं। इस वजह से स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स कन्फर्मेशन में इन दोनों की वजह से एक स्ट्रेन मॉलिक्यूल में आता है, मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आता है, वी कॉल दिस इज ए टॉरिशनल स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन कह रहा हूं मैं? टॉरिशनल स्ट्रेन आता है, टॉरिशनल स्ट्रेन आता है। और इस स्ट्रेन की वजह से, इस स्ट्रेन की वजह से ये जो एक्लिप्स, जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, ये अनस्टेबल होता है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन स्टेबल होता है और एक्लिप्स वाला अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है, वी कॉल इट्स अ टॉरिशनल स्ट्रेन। स्ट्रेन क्यों आ रहा है? बिकॉज टू रीजंस हियर, वन इज द स्टीरिक हिंड्रेंस एंड सेकंड इज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। जस्ट अ मिनट। मैंने क्वेश्चन किए 24 क्वेश्चंस किए, वो सेंड कर जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं, आते हैं, हाँ अब आते हैं। हाँ आते हैं, आपको सेंड कर यस, कोई डाउट इसमें? सरप्रीत, जशन? No, No, sir. sir. नो। सो एक एनर्जी बैरियर क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस 1 to 20 किलो जूल पर मोल। जितना वो क्लोज आता जाएगा, जितना जितना एक्लिप्स के पास आता जाएगा, उतना एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। मीन्स यहाँ से यहाँ पर वो था स्टैगर्ड पर, जहां पर डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं, जितना क्लोज आता जाएगा उनके बीच में रिपल्शन के कारण एनर्जी बढ़ता जाएगा 1 to 20 किलो जूल पर मोल, डिपेंडिंग अपॉन कितना क्लोज आ रहा है। और जितना यहाँ पर एनर्जी बढ़ेगा उतना इनस्टेबिलिटी बढ़ेगा, उतना इनस्टेबिलिटी बढ़ेगा। This repulsion interaction is known as a torsional strain. This repulsive interaction is called as torsional strain. This repulsive interaction is called as torsional strain. Okay, done? So conformation of ethanes. यहाँ पर इसको रोटेट करने से वही लिखा हुआ है कि आई हैव रोटेटेड दी कार्बन कार्बन बॉन्ड. So we can have number one Sohor's projection formula. ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये इसको छोड़ दीजिए. Yes, eclipsed and staggered, these two structures मैंने आपको ऑलरेडी बना कर दिखाए हैं. इसमें कोई डाउट? No, sir. नहीं. इसके बाद एक नया प्रोजेक्शन और करेंगे. लिखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला.
लिखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इस कार्बन एटम के साथ में तो 3 हाइड्रोजन है, फिर पीछे एक और कार्बन एटम है। ये हमने 100 हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला किया था। C1C2 C1C2 मैं इस समय यहाँ पर इस वाले कार्बन एटम को C1 कह रहा हूं जो सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, और उसके साथ अटैच्ड 3 हाइड्रोजन है 1 2 3। और ठीक C1 के बैक साइड पर एक और कार्बन एटम है C2 जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज C1 के ठीक बैक साइड पर है। और वहां पर है 3 हाइड्रोजन, ये वाले जो मैं बिल्कुल एक्लिप्स कर रहा हूं, तो मैं छोटे हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस तरह के प्रेजेंटेशन को कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब आपने क्या किया, फ्रंट वाले को सेम रखा और बैक वाले को 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हूं मैं। CWR का मतलब होता है यहां पर क्लॉकवाइज रोटेशन। फ्रंट वाले को सेम रखा और बैक वाले को जब आप रोटेट करेंगे 60 डिग्री से तो ये ऐसा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ए स्टैगर्ड कन्फर्मेशन and this is a eclipsed conformation. Eclipsed staggered. Clockwise rotation. Am I clear? Yes, sir. Right. अगर मैं इस स्टैगर्ड का दोबारा 60 डिग्री रोटेशन कर दूं क्लॉकवाइज तो दोबारा से एक्लिप्स बन जाएगा, नहीं बनेगा? अब ये इसके पीछे आ जाएगा, ये इसके पीछे आ जाएगा, ये इसके पीछे आ जाएगा, तो क्या होगा, एक्लिप्स कन्फर्मेशन बन जाएगा। इन बिटवीन जितने भी आप एंगल चेंज करेंगे दे ऑल विल बी कॉल्ड एज ए स्क्यू और गोशे। They all will be called as skew or gauche. Am I clear? कर लिया ड्रॉ? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, एक्लिप्स कन्फर्मेशन। देखो जरा, दिस इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड, जब आपके बीच में यहाँ पर एंगल 60 डिग्री का डिफरेंस हो। अब जब डिफरेंस ना हो तो हम ऐसा दिखा देते हैं, बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट ओनली टू शो कि बैक में पड़ा हुआ है, हम थोड़ा सा डिफरेंस दिखा देते हैं, अदरवाइज इट इज जस्ट द बैक। तो दिस इज ए एक्लिप्स कन्फर्मेशन। Am I clear? Remaining conformation known as a skew or gauche. Remaining conformation known as a skew or gauche. Done? Note it down? Yes, sir. All right. चलिए, relative stability में मैंने आपको बताया मैक्सिमम स्टेबल इज स्टैगर्ड, उसके बाद में स्क्यू, लास्ट में एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड में रिपल्शन ज्यादा हो गए, बिल्कुल टच कर रहे होंगे। सो दिस इज द relative stability of the conformations.
आज लोडी स्पेशल क्लास लग गई, लंबी क्लास। कल मैंने बोला था, यस सर, कल मैंने देर की कहा क्लास रहेगी। थोड़ी लंबी हो गई, और कल मैंने कहा भी था कि हम लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। ऑर्डिनरी लोग गए हुए हैं अभी वहां पर, सो रहे हैं, लोडी स्पेशल स्लीपिंग। ठीक है, आज काफी 3 स्टूडेंट एब्सेंट थे आज, वो ऑर्डिनरी हैं, सो रहे हैं, लोडी स्लीप स्पेशल स्लीप, और हम लोग लोडी स्पेशल क्लासरूम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग जो होते हैं वो अपने काम पर फोकस करते हैं, हर काम पे फोकस नहीं करते। दुनिया में लाखों काम हो सकते हैं ना, वो सब हमने नहीं करने, हमें सिर्फ अपना काम करना है। हमारे पास सिर्फ काम 2-3 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, उन पर काम करो, सक्सेसफुल हो जाओ। जो हर काम में अपनी टांग अड़ाएंगे वो कहीं सक्सेसफुल नहीं होते, ध्यान रखना। जो हर काम में टांग अड़ाएंगे वो कहीं सक्सेसफुल नहीं होते, जो एक काम पर फोकस करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। लोड़ी भी मनानी है, पता है रूठी कहाँ से हुई है लोड़ी? रूठी हुई लोड़ी आप लोगों से जो मनानी है, समझ नहीं आता। चलिए अपने काम पर फोकस रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम स्टेबल इज स्टैगर्ड स्क्यू कंफर्मेशन। समझ में आ गया इतना? इतना जाके प्रैक्टिस करो आज, ठीक है। लोड़ी शाम को मनानी है, वो जो आग जला करके थोड़ा डांस कर लेते हैं, भंगड़ा कर लेते हैं, कर लेना, लेकिन एक बार इसका सारा पढ़ लेना। कल की क्लास मॉर्निंग में सेम टाइम 6 o'clock, राइट। एक मैं असाइनमेंट भेज रहा हूं, उसे आप करके आना, अभी भेज रहा हूं मैं आपको असाइनमेंट। चलिए ओके, कुछ पूछना है इससे पहले बिफोर एंड द सेशन? नो No, सर। sir. नो, ओके देन सी यू टुमारो।